Assalamu alaikum. This is your maths lecture of chapter number 4, and today we will start with this chapter number 4, which is Introduction to Analytical Geometry. So, before starting and solving the geometry, we should have the basic concept of coordinate system. What is meant by coordinate system? When we draw two lines, one line which is horizontal, whereas the other line is vertical line, and both of the lines are mutually perpendicular to each other, these lines are called as coordinate axes. These two lines, these mutually perpendicular lines which meet each other at point O, are called as coordinate axes. In this coordinate axis, the line XOX dash is called as the horizontal line, and this is the x axis, whereas the line YOY dash is the vertical line and it represents the vertical axis. Now, when these two lines meet each other, you can see that it forms four quadrants. Okay, this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Now, in quadrant 1, all the values of x and y are positive, whereas in quadrant 2, the values of x are negative, but the values of y are positive. Okay, it means that in this upper portion, the values of y are positive in left and right hand side, whereas the values of x are positive only in this first quadrant, the right hand portion. Okay, and in the third quadrant, both the x and y values are negative. Okay, and in fourth quadrant, the values of y are negative, but the values of x are positive. Now, if we have any point P lying in this xy plane and we are required to find the coordinates of the point, what will we do? We will simply draw two perpendicular lines from point P, one horizontal line from P which meets the y-axis at point S, and the second vertical line from P which meets the x-axis at point R. So the point S and point R are the coordinates of this point PXY. Okay, if P is any point which is lying in the plane and we are required to find the coordinates, how can we find the coordinates of that point? We will simply draw up a line from point P downwards, simply a perpendicular which meets x-axis at a point and a horizontal line which meets y-axis at a point. Then the points where the lines meets are the coordinates of the point P. Okay, now if xy are the coordinates of a point P, then the first member of the ordered pair is called the x coordinate or abscissa, whereas the second member of the ordered pair is called as the y coordinate or the ordinate. Now, any point lying in this plane has the points are called as ordered pair. The points of the P are called as ordered pair. जो P के points होंगे इनको हम ordered pair कहते हैं x y को. And why we call it ordered pair? Because the numbers are in specific order. The first number represents the first set and the second element or the second number represent the second set. Over here, the first number will always represent the x component and the second number will always represent the y component. Okay, so the second name for x coordinate is abscissa. Okay, highlight it in your book. The second name for x coordinate is abscissa and the second name for y coordinate is ordinate. Okay, so if a point P has two coordinates x and y, the x is called as abscissa and y is called as ordinate. Okay, over here it is written that in coordinate first, second, third, fourth, which values are positive and which values are negative. Okay, you have to learn these values because by this you will be able to solve the first question of your exercise. Look at the first question of 4.1. Describe the location in the plane of the point PXY for which x is greater than 0. Now,
x is greater than 0 means that the value of x are positive. Greater than 0 की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है ना, 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 these all values are greater than 0, तो ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं. तो इन क्वेश्चन ही इज आस्किंग कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट, कि उस पॉइंट की लोकेशन बताएं प्लेन में जहां पर x की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होती हैं. तो आपको मैंने बताया है ना कि जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इन दोनों में x की वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव होती हैं. तो क्या आंसर होगा इसका जी, राइट हाफ प्लेन. राइट हाफ प्लेन प्लेन होता है ये जो x और y से मिलके ये जो एक बनता है ना, दिस इज कॉल्ड एज एक्स प्लेन. ओके, प्लेन इज एक्चुअली समथिंग टू डायमेंशनल. तो जो हम राइट हाफ प्लेन लेंगे, मतलब ये सारा पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट का, ये आ रहा है हमारे पास ऑल द वैल्यूज इन विच x इज ग्रेटर देन 0. ओके, नाउ in second part he is asking that locate the point where x is positive and y is also positive. अब देखें जी, y और x दोनों वैल्यूज किस में पॉजिटिव हैं, तो ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जिसमें कि x और y की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ये हम कहाँ लोकेट कर सकेंगे, वी कैन लोकेट इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, थर्ड पॉइंट वी हैव टू लोकेट विद x इज इक्वल्स टू 0. देखो x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पर होगा, हो ऑन द y एक्सिस. y एक्सिस की पूरी लाइन के ऊपर हमारे पास x 0 होता है और x एक्सिस की लाइन पे हमारे पास y 0 होता है, और जो ओरिजिन होता है दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ x एंड y आर 0. ओके, नाउ पार्ट 5, द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन 0 y की वैल्यू कहाँ पर आ रही है, y की ग्रेटर देन वैल्यूज आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, सो इसका सोल्यूशन देखिए, second quadrant and negative x-axis. Why we have taken negative x-axis? Because he is saying that value of y is greater than equals to 0. तो equal to 0 के लिए हमने x-axis भी लिया है. ठीक है, y की वैल्यू equal to 0 हो गई x-axis पे and greater than 0 हो गई हमारे पास second quadrant में, और x की वैल्यू हमने लेनी है negative. That is the reason we have taken second quadrant. Now यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव हो जाता है, मुझे x नेगेटिव चाहिए. ओके, नाउ in part 6 we have to locate the point where the values of x and y are equal. Okay, so it is a line bisecting first and third quadrant. So इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ गर्ल्स के x और y की वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास वो इक्वल कहाँ पर होती हैं. If I have this plane, okay, this xy plane and these are the coordinate axes. Now any straight line जो कि आपके पास फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कट करेगी, इस लाइन का ये जो कर्व है ये y is equals to x का कर्व है. दिस मीन्स दिस इज द लाइन वेयर ऑल द वैल्यूज ऑफ x and y are equal. So over here it is written as a line which bisects the first and third quadrant. Okay, next seventh part is mod of x is equals to negative times mod of y. A positive value cannot equal to negative value except the number 0. So origin, देखिए मॉड की वैल्यू तो हमें पता है होती ही पॉजिटिव है. ठीक है, तो इस मॉड की वैल्यू और इस मॉड की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई, लेकिन इन इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, मॉड ऑफ x की वैल्यू माइनस y के इक्वल होनी चाहिए, माइनस मॉड y. अब हमें पता है कि मॉड x की तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, मॉड y की भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी. ठीक है, लेकिन इसके आंसर के बाद जहां पर माइनस लिखा है, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू के इक्वल नहीं आ सकती. ठीक है, इसलिए ये केस कौन सा होगा, ओनली द केस ओरिजिन द पॉइंट 0 0, क्योंकि हम 0 को कहते हैं कि ये एक इसके साथ हम साइन नहीं लिख रहे होते ना. दिस इज द रीजन यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट लिया है जिसमें के मॉड वैल्यू 0 की इक्वल आ रही है. 0 0 इज द ओनली पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. अच्छा, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में देखो क्या लिखा है इन्होंने, हमने मॉड की वैल्यू लिखी प्लस माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. तो this implies mod of x is greater than 3 or minus x is greater than 3.
दिस एम्प्लॉयज x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। ये कैसे आ गया हमारे पास? गर्ल्स, जब भी हम लोग साइन चेंज करते हैं इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी उलट जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल, if I say that the value of x is, sorry, not mod, value of x is less than equals to a, okay? और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो इक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे कि हम लिखते हैं कि -10 इज लेस देन -4, ठीक है? -14, -10 इज लेस देन -14। माइनस की वैल्यूज जितनी बड़ी होती जाती है हमारे पास उतना वो एक्चुअली छोटी होती जाती है, ओके? सो -10 इज ग्रेटर देन -14, ठीक है? लेकिन अगर मैं क्या करूं, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पर 14 हो गया। तो अब इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब तो 10 की वैल्यू ग्रेटर नहीं है ना 14 से, 10 तो लेस होता है 14 से। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव साइन को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है? अब जो हमारे पास जहां पर क्वेश्चन है, ओवर हियर द क्वेश्चन इज mod of x is greater than equals to 3, okay? mod of x greater than equals to 3, ठीक है? इसे मैं यूं लिख सकती हूँ, मॉड की वैल्यू हटाऊंगी तो साइन आ गया +-x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यूं इसको अब दो वैल्यूज बन गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू लिख ली, -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और इसमें अगर नेगेटिव साइन दूसरी तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आप लोगों को दिया है, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बनी -3 इज लेस देन इक्वल्स टू -3 is greater than equals to x which is greater than equals to 3, okay? अच्छा जी, अब आए वापस आप लोग इधर। which is the set of points lying on the right side of the line x is equals to 3 and the point lying on the लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू -3। देखो जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आई ना, ये लास्ट वाला इंटरवल बना मेरे पास, ये वाला -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो एक्चुअली x का इंटरवल बन गया कहाँ से कहाँ तक? +3 से लेकर -3 तक, ठीक है? जब ये इंटरवल बना तो हमने जो पॉइंट्स लोकेट किए हैं mod of x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए, तो वो कौन सी हो गई? ये देखो इसकी फिगर भी साथ बनी हुई है। x इज इक्वल्स टू 3 से लेकर x इज इक्वल्स टू -3 तक के बीच के जितने पॉइंट्स हैं वो सारे आ रहे हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स क्यों इंक्लूड हो रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने करना है जी x is greater than 2 and y is equals to 2. The set of all points on the line y is equals to 2 for which x is greater than 2. y is equals to 2 की हमारे पास ना एक स्ट्रेट लाइन बनती है। देखिए अगर ये मेरे पास एक xy प्लेन है तो y is equals to 2, एक यहाँ पर लाइन बनेगी, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ओके? सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स y is equals to 2। और x की वैल्यूज हम लोगों ने क्या ली हुई है जी? इसमें x की वैल्यूज हम लोगों ने लिए हैं फॉर x ग्रेटर देन 2, ठीक है? x ग्रेटर देन 2 अब देखो कहां पर आएगा, x की वैल्यू 1 2, ये वाली लाइन तो ऐसे ही चलती जाएगी सारी, और 2 से ग्रेटर मतलब x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से जो ग्रेटर ये वाली सारी वैल्यूज जो इतने रीजन में लाए करेंगी ना अप टू सो ऑन, ये सारी वैल्यूज होंगी जो कि हमें यहाँ पर लोकेट करनी है, ठीक है? अच्छा, अब आप वापस आइए अपनी बुक के आर्टिकल पे। नेक्स्ट है जी डिस्टेंस फॉर्मूला।
अगर मेरे पास प्लेन में कोई से भी दो पॉइंट लाई करें, लेट P1 एंड P2 बी एनी पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द प्लेन एंड आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, तो मैं वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगी? देखो, अगर हमारे पास कोई दो वन डायमेंशन में अगर होते हैं, वन डायमेंशन मतलब अगर सिंपल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो दैट इज वेरी इजी। मैं फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाता है। लेकिन प्लेन हो गया जी हमारे पास टू डायमेंशनल, ठीक है। अब अगर टू डायमेंशन में ये मेरे पास एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कोई भी पॉइंट P1 हमारे पास है और यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट 2, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस होता है गर्ल्स, पहली बात तो ये है कि आपको पता है ना कि डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x2 y2, ठीक है जी। नाउ आई एम रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिस्टेंस P1 P2। ओके, डिस्टेंस का ये जो इक्वेशन नंबर 2 का हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन वेयर x1 y1 represents the coordinates of point first P1 and x2 y2 represents the coordinates of second point P2। so distance is equals to mod of AB। गर्ल्स हम हमेशा mod को लिखते हैं फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस। So distance is equals to mod of AB is equals to under the root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। So distance को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, when I put bar brackets among this P1 P2, this represents that I have to find the distance, or I have written the distance between P1 and P2, which is equals to under the root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। okay, the difference of the x coordinates, the difference of squares of x coordinate plus the difference of y coordinate square, ठीक है, हो गया जी। x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root, ठीक है, दिस गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट्स P1 और P2 के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। P1 के भी कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, P2 के कोऑर्डिनेट्स भी, ठीक है। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कंसिडर करते हैं और P2 के कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कंसिडर करते हैं। ओके, नाउ look at the question number 2 in your book. Find in each of the following the distance between the 2 points and the midpoints of line segment joining the 2 points। okay, अब आपके पास ये 3 पार्ट्स गिवन है A B C और तीनों में आपको A B 2 पॉइंट्स गिवन है। तो पहले आपने इनका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड कर लेना है और फिर आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, जो कि आई विल टेल यू कि मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस तो क्लियर है ना, डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। देखिए, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and 4। ओके, ओवर हियर यहाँ पर जी गर्ल्स ये बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व हुआ है। फर्स्टली यू हैव टू राइट the formula AB is equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and then write the values। okay, -2 -3 whole square plus -4 -1 whole square, और ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, इनका आप अंडर रूट लोगे तो 5 अंडर रूट 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी। ओके, नाउ वी विल सी के हाउ कैन वी फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। देखो बेटे, जब हमने फाइंड कर ली ना दोनों लाइंस के दरमियान का डिस्टेंस, तो एक्चुअली मेरे पास P1 P2 एक लाइन आ गई। अब मैंने फाइंड करना है लाइन का मिड पॉइंट। ओके, लेट्स से दिस इज द पॉइंट A और B, this is the
पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए x2 y2 और a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए x1 y1. Let us say that the point M over here is the midpoint of the line AB. Then the coordinates of the midpoint will be x1 plus x2 divided by 2 and the coordinates of y will be y1 plus y2 divided by 2. Okay? आपने क्या करना है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो आपके पास a और b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, तो x कोऑर्डिनेट्स का सम लेके डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट्स का सम लेके डिवाइडेड बाय 2, तो जो रिजल्टेड वैल्यूज आएंगी they will be the coordinates of point M, which is the midpoint of any straight line AB. Clear? Okay. So coming back to the exercise. Excuse me. Now the midpoints of the point AB. देखो हमारे पास A के वैल्यूज गिवन है 3 1, B की वैल्यूज गिवन है -2 -4. यहाँ पर गर्ल्स ये बिल्कुल डायरेक्टली सॉल्व हुआ है. In the first step while solving the question, first of all you will write the formula. एंड द फॉर्मूला ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला, आपने इसको नीट वर्क में ही करना है कि द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. फिर x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई. ओके ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. Next, at the point dividing the join of two points in the given ratio. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास, हमने मिड पॉइंट तो फाइंड कर लिया, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है तो हमने उसका मिड पॉइंट फाइंड करने का तो फॉर्मूला पढ़ लिया. लेकिन अगर कोई और पॉइंट है जो किसी स्ट्रेट लाइन को डिवाइड कर रहा है लेकिन उसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे वो पॉइंट नहीं लाई कर रहा, तो वो उसको किसी रेशियो में डिवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे पास अगर हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, if this is any straight line AB and this is a point P which is dividing this line, okay, तो अब देखो, अब ये इसका मिड पॉइंट लाइन नहीं कर रहा, बल्कि क्या हो रहा है, एक्चुअली ये पॉइंट P जो है इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है. यहाँ पर आज इसका देख लो एक पार्ट लग रहा है और यहाँ पर ऐसे दो पार्ट्स बन सकते हैं. ठीक है, so the point P is dividing the line into the ratio 1:2. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर हम किस तरीके से फाइंड कर सकेंगे. देखो, इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम गिवन है कि let A and B be two given points in a plane. The coordinates of point dividing the line segment AB in the ratio K1:K2 are. अब देखें, मैंने आपको भी जो एग्जांपल दी इसमें मैंने 1:2 का है. ये थ्योरम है तो इसमें जनरली लिखा हुआ है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन को किन रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, वो उसको डिवाइड कर रहा है K1:K2 में. ठीक है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट होगा K2x2 plus K2x1 divided by K1k2, और the coordinates of y are K1y2 plus K1y1 divided by K1 plus K2. ठीक है, इसको याद करने का आसान तरीका ये है गर्ल्स, दोनों के डिनोमिनेटर में तो K1 plus K2 आ रहा है. ठीक है, न्यूमरेटर में देखो जब x कोऑर्डिनेट है तो K1 x1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस K2 x1 के साथ आ रहा है. ठीक है, सॉरी, K1 x2 प्लस K2 x1. सिमिलरली y में न्यूमरेटर में फिर सिर्फ y वाली टर्म्स होंगी और डिनोमिनेटर में सिर्फ K1 प्लस K2 आ रहा है. अब ये नोट देखिए, दिस इज बिट इंपॉर्टेंट. If the directed distance AB and PB have the same sign, then their ratio is positive and P is said to divide AB internally. कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट P है वो लाइन AB को इंटरनली डिवाइड उस वक्त करेगा कि जब जो डिस्टेंस है AP और PB का उनके साइन भी सेम होंगे. ठीक है, और उनकी अगर हम रेशियो ले लें, AP डिवाइडेड बाय PB की रेशियो लें, तो वो पॉजिटिव आंसर देगा. लेकिन if the directed distance AB and PB have opposite signs, that is P is beyond AB, then their ratio is negative and P is said to divide externally. अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी गर्ल्स, जैसे कि ये वाली एग्जांपल दी थी, over here this point P was dividing AB internally. लेकिन अगर कोई हमारे पास AB यहाँ पर लाई कर रहा हो
लेकिन जो डिवीजन वाला पॉइंट है वो इस साइड पर या इस साइड पर यहाँ पर हो, इन दिस केस इट विल डिवाइड द लाइन ए बी एक्सटर्नली, ठीक है। ओके अब इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए ना हमारे पास फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। ये वाली जो एग्जांपल है इसको देखिए, okay, example given है, find the coordinate of the point that divide the join of A and B in the ratio 2:3। K1 और K2 की वैल्यू गिवन है 2 and 3। कह रहे हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें जो इस लाइन ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। एक दफा पॉइंट डिवाइड कर रहा है इंटरनली, सेकेंड टाइम द पॉइंट इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली, ठीक है। ओके अब K1 की वैल्यू 2 है, K2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। X1 की वैल्यू -6 है, X2 की वैल्यू 5 है, Y1 की वैल्यू 3 है, जबकि Y2 की वैल्यू क्या गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ B दैट इज -2। अब द फॉर्मूला टू डिवाइड द लाइन इंटरनली, वो यही फॉर्मूला है जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये K1 X2 plus K2 X1 divided by K1 plus K2 y is equals to this value। और एक्सटर्नली के लिए आपने सिंपल क्या करना है, यही वाली वैल्यूज जो होंगी ना ये माइनस हो जाती हैं, ठीक है। K2 X2 minus K2 X1 divided by K1 plus K2 divided by K1 minus K2, ठीक है। डिवीजन में भी माइनस ही आ जाता है। पूरा फॉर्मूला जो होता है कि नेगेटिव जहां जहां इसमें प्लस साइन आ रहा है वहां पर माइनस साइन आ जाएगा, तो वो एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आएंगे जरा एक्सरसाइज पे वापस। वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, which of the following points are at a distance of 15 units from origin। हमने बताना है कि ये जो ए बी सी डी गिवन है इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ओरिजिन से 15 यूनिट्स पर हैं। इसका मतलब है कि द पॉइंट P1, ए पॉइंट तो हमारे पास ये है और जो बी पॉइंट है वो हम लेंगे क्या, 0 0 लेंगे, ठीक है। और फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस, और जिसका आंसर आ जाएगा 15 तो हम कह देंगे कि ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे लाई कर रहा है। देखिए जरा इसका सोल्यूशन, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या कंसिडर करोगे, ओरिजिन 0 0, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है डायरेक्ट, आप लोग इस तरह करना कि अपने नोट्स जब इसके बनाओगे ना बेटा, तो जो आपके पास पॉइंट गिवन है एक पॉइंट वो, तो दूसरा पॉइंट ओरिजिन लिखना और डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, यहाँ पर फॉर्मूला लिखे आप लोग, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। फिर क्वेश्चन के शुरू में आपने जो ए में क्वेश्चन गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स वो हैं और ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, 0 0, वो भी गिवन है, ठीक है। इसको लिख दो कि ये वाली वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज हैं और ये वाली वैल्यूज जो हैं ये क्या है, x2 y2 की वैल्यूज हैं। उसके बाद आप लोग जो हो ना ये वाली वैल्यूज जो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली पुट की हुई हैं, फिर आप लोग वैल्यूज पुट करो और देखो कि फर्स्ट वाले का आंसर 15 आ रहा है, तो हमने लिख दिया कि ये वाला पॉइंट जो है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स अवे है, वेयर एज द सेकंड यूनिट उसका आंसर तो 15 नहीं आया, तो वो हमने लिख दिया कि दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, now come to question number 4. Show that the point A, B and C are the vertices of right triangle। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। आप बेटे डिस्टेंस फाइंड करें, ए बी बी सी सी ए, मतलब तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लें, ठीक है। फिर अगर तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम उसमें होल्ड कर जाए, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर ना आए ना, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम तो होल्ड ही तब करता है कि अगर हमारे पास जो गिवन ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये किसी राइट एंगल के वर्टिसेस नहीं है। आपकी बुक में भी गर्ल्स एक एग्जाम्पल ऐसी गिवन है,
ये एग्जाम्पल नंबर 1, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, वो लेंथ कैसे फाइंड करोगे, ए बी बी सी सी ए फाइंड करके। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए गर्ल्स इट इज वेरी नेसेसरी कि आप इनका रफ स्केच करोगे। ठीक है, रफ स्केच आप किस तरह करोगे, देखो जैसे कि ये पॉइंट्स गिवन है -1 2 एंड 7 5। ओके, एक पॉइंट है जी मेरे पास -1 2, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2, तो ये एक पॉइंट गिवन है। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू गिवन है x7 y5, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5, कोई यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, और जो थर्ड वैल्यू है हमारे पास, थर्ड वैल्यू है, थर्ड वर्टिस है x2 y-6, x2 y-6 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स को फ्री हैंड जो है आप ज्वाइन कर दो, तो एक आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। इस फोर्थ चैप्टर में जितने हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे उन सब में हम साथ में फ्री हैंड स्केचिंग करेंगे। अच्छा, फिर देखें जी, ये हमने रफली स्केच कर लिया, तो फिर हम उसके बाद क्या करो, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड की, ए बी बी सी सी ए। हाउ कैन वी फाइंड द लेंथ, बाय अप्लाइंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें तीनों के कोऑर्डिनेट्स तो पता है एक्स वाई, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद देखें जी क्या रिजल्ट आ गया कि ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। सो इफ पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स, this represents that the given vertices are the vertices of a triangle. Now coming to the example number 2, the point C -5 3 is the center of circle and this point lies on the circle. What is the radius? अब देखें गर्ल्स, एक हमें गिवन है सेंटर सर्कल का, और एक वो पॉइंट गिवन है जो कि सर्कल के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज लेट्स से दिस पॉइंट। I am required to find the distance, radius. So how can we find the radius? Radius is simply the distance between these 2 points. Okay, this is the center, this is any point P. So this PC mod will represent the actually radius. Okay, P के coordinates भी हमारे पास हैं, C के coordinates भी हैं. Simply apply the distance formula and you can find the radius. Okay, now come to the exercise. Question number 5. The midpoint of sides of a triangle are this, this and this. Find the coordinates of the vertices of the triangle. अच्छा जी, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें मिड पॉइंट्स गिवन है। मिड पॉइंट्स गिवन है और हमने फाइंड क्या करने हैं, ए बी और सी के वर्टिसेस गिवन है, फाइंड करने हैं। ओके, so firstly we will let the D, E and F be the midpoints of the triangle ABC, where D is the midpoint of side AB, F is the midpoint of side AC, and E is the midpoint of side BC. So we know that the coordinates of midpoints are x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. देखो शुरू में ये जो वर्टिसेस है ना ए बी सी जो कि हमने फाइंड करने हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज कर लिए हैं। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए x3 y3। ठीक है, ये हमने सपोज किए। डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब डी अगर मिड पॉइंट है, ए और बी का मिड पॉइंट डी है, तो फिर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 1 एंड -1। जब इन दोनों ऑर्डर पेयर्स हैं, ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं और इसमें इक्वालिटी आ रही है, इसका मतलब है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी गर्ल्स, यहाँ से -1 की इक्वल आएगी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गए। ठीक है गर्ल्स, सिमिलरली E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसको मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ओके जी, हमने क्या कहा,
कि E इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमने x3 y3 सपोज किए हुए हैं। सिंस E इज मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास E के कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है, ये गिवन क्या है, -4 -3। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है -4 -3। गर्ल्स हमने पहले कहा है ना कि जो प्लेन में पॉइंट्स लाई करते हैं ये ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू हमेशा x को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड y को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 किसकी इक्वल आ गया, -4 की इक्वल आ गया, और y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 किसकी इक्वल हो गया, -3 की इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, दो इक्वेशन बनेगी, x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई, -8, और y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या आ गई, -6। ठीक है, इसी तरीके से सेम हम क्या करेंगे कि सिंस f इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए और इक्वेशन बना ली। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया गर्ल्स, मेरे पास 6 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, एक ये वाली बनी ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, y1 plus y2 is equals to -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now I have 6 equations and 6 unknowns. Whenever the number of unknowns and number of equations are equal, तो वहाँ पर क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है ना। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करिए और आपके पास x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यूज जब आएंगी तो यही वैल्यू